Assalamualaikum guys, I hope that all of will be fine. Today I'll deliver a lecture of English of class 9 of unit number 1. The savior of mankind, इंसानियत के निजात दहिंदा, इंसानियत को निजात दिलाने वाले. So guys, the whole story is about the land of Arab and the life of Hazur sallallahu alaihi wasallam, how he preached the all mankind with great love and kindness. So before reading the whole story, first of all we will complete the page number 1 of unit number 1. So move to pre-reading questions. You can see here are 3 questions. First one is, mention the condition of Arabia before Islam. The answer of question number 1 is, before the advent of Islam, the condition of Arabia was very bad. The people of Arabia were in the darkness of ignorance, superstition and disbelief. They had many bad habits. They used to fight among themselves over petty disputes for years. Now look at the question number 2. How did Islam change the lives of the people? The answer of question number 2 is, Islam introduced a completely new way of life for the people, changing not only their religious beliefs but also social and economic structure, and giving a new legal and moral code. In this way, Islam changed the life of the people by leading them the light of faith and divine bliss. Now look at the last pre-reading question, and that is, who is the last Rasul of Allah Almighty? And the answer of question number 3 is, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah Almighty. Now guys, move to learning objectives. The first objective is learn the reading skills, skimming, scanning and summarizing. Basically these are the reading skills. The first one is skimming and its mean mention briefly, किसी बात को, किसी चीज़ को सरसरी तौर पर बयान करना. स्कैनिंग, एग्जामिन, परखना, जांच पड़ताल करना. एंड समराइजिंग मीन रिकैप्चुलेटिंग, लाइक वी कैन से खुलासा बयान करना. Now look at the second objective. Know and learn about the mission of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Learn how his teachings has changed the world. Recognize and use adjectives in sentences. You know what is adjective? It's a quality and disquality of a noun or a pronoun. Use of thesaurus. Students, thesaurus is the dictionary of synonym. The last one is utilize informational sources like encyclopedia and internet. Now guys, move to page number 2. Now we will start the Urdu translation of unit number 1. So look at the first paragraph. Arabia is the land of unparalleled charm. Unparalleled जिसकी कोई मिसाल ना हो, बेमिसल हो. Charm, जाज़बियत and beauty, खूबसूरती. With its trackless deserts, बेनिशान सहरा of sand dunes, रेत के टीले. In the dazzling rays, चमकदार शुआएं of the tropical sun, मुंतका हरा. So the Urdu translation of the first line is, अरब आफ्ताब मुंतका हरा की मुनव्वर किरणों में अपने रेतले टीलों के बेरास्ता या बेरा सहराओं के साथ हुस्नो जाज़बियत की एक बेमिसल सरजमीन है. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, तारों से भरा आसमान. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तख़य्युल को जिला बख्शी. Imagination, तख़य्युल. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सरज़मीन में पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का के शहर में. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहिरा किल्ज़म से तकरीबन 50 मील दूर है. नाउ लुक एट द फर्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन एंड दैट इज़, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड? So the answer of first block question is, Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea, is situated in South Arabia. Now move to second paragraph. The Arabs possessed a remarkable memory and were an
एलिक्वेंट पीपल, रिमार्केबल गैर मामूली, आला, एलिक्वेंट खुश गुफ्तार। अहले अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे और खुश गुफ्तार लोग थे। खुश गुफ्तार को हम कह सकते हैं कि फसीहुल बयान, जिनके पास बहुत अल्फाज हों अपनी बात को अगले बंदे के साथ करने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी खुश बयानी और हाफजे की जो एक सलाहियत का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कम्पटिशन्स एट ओकाज़। हर साल ओकाज़ के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू खलीफा वलीद बिन यजीद, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. रवायत है, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको छोटे कतात को गिनती में लाए बगैर हरूफ तहज्जी के हर हर्फ की एक तवील नज़म सुना सकता हूँ, और वह तमाम ख़ास तौर पर अशात इस्लाम से कबल के शुरा की लिखी हुई हैं। प्रोमलगेशन अशात। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह कादिर मुतलक ने अपने हतमी निज़ाम फ़ितरत की अशात और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। प्रिजर्वेशन हिफाजत। नाउ लुक एट द सेकंड ब्लॉक क्वेश्चन एंड दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज़। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एज at Okaz every year. Now move to third paragraph. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के धाने पर खड़ी थी। Mankind इंसानियत, chaos इंतशार, तबाही we can also say that. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. यूँ दिखाई देता था कि वो तहज़ीब जिसको परवान चढ़ने में 4,000 साल लगे थे, अब वो रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो गई है। क्रम्बलिंग टुकड़े टुकड़े होना या रेज़ा रेज़ा होना। At this point in time, एंड इस वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। अल्लाह कादिर मुतलक ने उनमें से एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना था। नाउ मूव टू 4th पैराग्राफ। व्हेन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस की उम्र को पहुँचे, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त खलवत और मुराकबे में गुजारा। सॉलिट्यूड तन्हाई, खलवत मेडिटेशन मुराकबा। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी लेकर गारे हिरा में गोशा नशीं हो जाते और कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर फरमाते थे। The period of waiting had come to close. इंतज़ार का अरसा इख्तिताम पज़ीर हो चुका था। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। कंपैशन हमदर्दी, ओवरफ्लोइंग मतलब झलक रही थी इंसानी हमदर्दी उनके दिल में। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, सोशल इवल्स, क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद की ख्वाहिश थी कि आप वसल्लम गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ दें। प्रेसिंग अर्ज, ज़बरदस्त ख्वाहिश होना। इरेडिकेट, ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ देना। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी bestowed विद नबूवत। ये वो वक्त था, ये वो लम्हा था जब आप सल्लम को बिस्टोर्ड, नवाजा गया नबूवत से। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब वो गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम तक अल्लाह ताला का दर्ज झैल पैगाम पहुँचाया। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंगील ब्लड। पढ़ अपने रब अल्लाह ताला के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, टॉट मैन डैट विच ही न्यू नॉट। पढ़ और तेरा रब करीम है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया इंसान को वो सब कुछ वो जो नहीं जानता था। So guys, in today's video I have told you the Urdu translation of first 5 paragraphs of unit number 1, the savior of mankind. The remaining paragraphs translation I'll tell you in next video. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.